Hello friends, today we are going to talk about planning and designing on operation theater, which is a very important topic. It is basically a subject of your fourth semester under OT and ward management. So, operation theater is the heart of any major surgical hospital. And operation theater is basically a room within a hospital within which surgical and other operations are carried out. So, as you can see from the slide, it's basically a specialized facility. ये एक important जगह है जिसके अंदर आपको बहुत important है कि आप aseptic controlled environment को maintain कीजिए और इसमें trained personnel होने का बहुत ज़रूरत है ना? Because the people who are going to deal with the surgery, whether he or she is the anesthetist है या basically surgeon है या आपके nurses हैं, okay, operation staff है, support staff है, वो सारे के सारे trained people होते हैं. Henceforth, it is a specialized facility within a hospital where life-saving or life-improving procedures are basically carried out by trained people. तो ऑपरेशन रूम जो होता है या फिर ऑपरेटिंग रूम जिसको हम बोलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहां पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है. ओके, इट इज नॉट अ सिंपल इंजीनियरिंग वर्क. सो हेयर बेसिकली अ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेडिकल कॉम्बो इफेक्ट इज रिक्वायर्ड टू मेक. फॉर इंस्टेंस, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि रूम स्पेशियस होने चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए, सर्जिकल लाइट्स होना चाहिए, स्क्रीन्स होने चाहिए, मॉनिटर होने चाहिए, है ना. देन स्पेशल एयर हैंडलर होने चाहिए, स्लाइटली एलिवेटेड प्रेशर होना चाहिए और आपका वॉल सक्शन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, एनास्थेटिक गैसेस का वहां पे प्रोविजन होना चाहिए, एनेस्थीसिया कार्ट होना चाहिए. तो यू सी, that's why I told you it is a civil, mechanical, electrical, electronic, biomedical effort सबकी यहाँ जरूरत होती है. बिकॉज अगर आप देखिए एनेस्थीसिया का अगर आप लिख लेते हैं कि जो लोग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, ओके, सो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट basically by virtue of the knowledge of the intricacies of physiology, physics, biomedical aspects of the medicine, ये लोग अर्ली प्लानिंग ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स में काम करते हैं. ओके, सिमिलरली जो सेकेंड हाफ पार्ट होता है, तो अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली एक सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर 10 to 20% टाइम कंट्रोल इज बीइंग कैरिड आउट बाय एनेस्थेटिस्ट, whereas 80%, okay, more than 80% has to be carried out by the surgeon and the nursing staff. So that's why it's very important. और आप जैसा स्लाइड में देख सकते हैं कि there is a storage space, disposables रखने के लिए होना चाहिए, okay, and there are various other facilities that has to be carried out, including there has to be a room for the personnel who needs to change, wash and rest. So all these types are basically seen in all these stuff. So as far as the operating room equipment is concerned, I have already told you there is an operating table, room lights has to be provided, the anesthesia machine is at the head of the operating table, there is an anesthesia cart, sterile equipments होने चाहिए. देखिए पर्पस क्या है, पर्पस ये है कोई भी ओटी कॉम्प्लेक्स का कि आपको वहां पे इन्वेस्टिगेटिव, चाहे आप बायोप्सी कर रहे हैं तब भी आपको ये करने की जरूरत है, या आप किसी और टाइप का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जैसे आप एंडोस्कोपी कर रहे हैं तब भी आपको पेशेंट, देन डायग्नोस्टिक हो गया, थेरेप्यूटिक हो गया या पैलिएटिव हो गया. पैलिएटिव जैसे कि आपका कैंसर सर्जरीज हो गया, ओके, तो आपको सर्जिकल रिमूवल करना है किसी भी कैंसर सेल का, तो देन इट इज अ पैलिएटिव सर्जरी. So where it is at varying degree of invasiveness is required, and all this has to be carried out in asymptomatic condition like the especially in the OT complexes. Similarly, it also depends on the size of the hospital, what is the turnover of the patient, and what sort of a specialty we are catering to. Okay, so this is in nutshell the. Similarly, you can see there is a operating room layout. देखिए किसी भी OT कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जोन्स बने होते हैं. तो जोन्स बेसिकली इस पे डिपेंड करते हैं कि लोकेशन एंड द फ्लो ऑफ पेशेंट्स किस तरीके का है, देन व्हाट इज द स्टाफ एंड द मटेरियल्स
बेसिकली 3 ब्रॉड ग्रुप्स बनाते हैं इसके अंदर, है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला कि द लोकेशन एंड द फ्लो ऑफ द पेशेंट्स कैसे हैं, तो एक तो पेशेंट का ग्रुप हो गया कि पेशेंट कहाँ पे हैं और उनका फ्लो किस तरीके है। सेकेंड, द फ्लो ऑफ द स्टाफ, एंड थर्ड, द फ्लो ऑफ द मटीरियल। सो दीज 3 मेक्स द broad groups in which these has to be considered during the designing of the OT. एंड OT कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखा जाए तो बेस्ड ऑन द वेरिंग डिग्री ऑफ द क्लीनलीनेस in which the bacteriological count progressively diminishes from the outer to the inner zone, जितना बाहर ज्यादा होगा और इनर आके बिल्कुल जीरो की तरफ आ जाएगा। तो उसके हिसाब से हम बेसिकली अलग अलग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं फ्रॉम द इनर जोन टू द आउटर। तो इसके अंदर हम 4 टाइप के जोन्स हम बोलते हैं। सबसे पहला होता है प्रोटेक्टिव जोन ना, हॉस्पिटल के अंदर एक प्रोटेक्टिव जोन होता है। सेकेंड होता है आपका क्लीन जोन, तो अभी हम आगे जब अपने स्लाइड्स देखेंगे तो वहां पे भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो फॉर योर नॉलेज वी शुड नो, लाइक व्हाइल वी आर डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ एन ऑपरेशन थिएटर, द ऑपरेटिंग रूम लेआउट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 4: protective zone, clean zone, aseptic zone and disposal zone. As far as the protective zone is concerned, it comprises of all your changing rooms of all the medical and the paramedical staff, the transfer bay for the patients, materials and the equipments, the rooms for the administrative staff, stores and records, pre and post operative rooms, ICU and PICU, as well as your sterile zones, stores. Whereas the clean zone is concerned, again clean zone basically connects the protective zone to the aseptic zone. तो जो पहले अंदर का, तो सबसे अंदर का एरिया इसको प्रोटेक्टिव जोन कहते हैं और बाहर के एरिया को एसेप्टिक जोन। एसेप्टिक और मतलब प्रोटेक्टिव जोन के बीच में क्लीन जोन होता है। तो क्लीन जोन के अंदर क्या क्या होता है, स्टोर्स एंड क्लीनर्स रूम हो गया, इक्विपमेंट स्टोर रूम हो गया, मेंटेनेंस वर्कशॉप हो गया, पैंट्री हो गया, फायर फाइटिंग डिवाइस रूम हो गया, एंड इमरजेंसी एग्जिट हो गया, आपका सर्विस रूम फॉर द स्टाफ हो गया, एंड क्लोज सर्किट टीवी कंट्रोल एरिया हो गया। तो इस तरीके से आपका लेआउट है। और जहां तक मैंने बात की इक्विपमेंट्स की, तो अगेन आपका ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोकॉटरी, आपका हार्ट लंग मशीन है ना, ऑल दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स आर देयर। सो देन सिमिलरली सर्जन एज वेल एज असिस्टेंट का इक्विपमेंट होता है। तो पीपल जो कि they are working in the OT room, they have to wear PPE to help to prevent bacteria from infecting the surgical incision. और PPE में बेसिकली अगेन प्रोटेक्टिव कैप होता है, मास्क होता है, शेड्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, लॉन्ग गाउन होता है ना। और सिमिलरली इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं। स्पेशली आजकल तो आपके गूगल गॉगल्स भी पहने जाते हैं, सो दैट गूगल आई, जिसके वजह से आप सर्जरी को भी मॉनिटर कर सकते हैं और उसको लाइव दिखा भी सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली द ऑल थिंग्स हैज टू बी केप्ट एज अ डिस्टेंस ऑफ 12 to 6 inches, बिकॉज उसको स्टेराइल रखने के लिए ना, एसेप्टिक रखने के लिए। सिमिलरली आप बेसिकली हम प्लानिंग करते क्यों हैं, हम प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एसेप्सिस को मेंटेन करें। देखिए, नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज द नंबर 1 एनी सर्जन और फॉर एनी ऑपरेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेंजर होता है वो इन्फेक्शन का ही खतरा होता है, बैक्टीरियोलॉजिकल या फिर एनी अदर इन्फेक्शन। इसलिए वी हैव टू इंश्योर मैक्सिमम सेफ्टी फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज स्टाफ फ्रॉम द इंस्टॉलेशन हैजर्ड्स। Similarly, we need to know that optimal utilization of the OT and the staff time is there. अब मान लीजिए आपके पास में 4 OT हैं, 4 OT में लगभग आपके X अमाउंट ऑफ पेशेंट आ रहे हैं, तो आपका डिमांड सप्लाई को आप केटर कैसे कर रहे हैं, आप उसका ऑप्टिमल यूज कैसे कर रहे हैं। आपका ये तो नहीं कि ऑपरेशन थिएटर खाली पड़ा हुआ है, अगर आप उसको फुल कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं और 4 ऑपरेशन थिएटर आपके राउंड द क्लॉक फुली ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, और उस पे अगर आपके नहीं ऑक्यूपाई हो रहे हैं, खाली जा रहे हैं, तो ये एक एप्रोप्रिएट या इफेक्टिव प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ गुड स्मूथ एज वेल एज effective functioning of the OT. There has to be a good working environment and it should allow flexibility by use for the multiple operation suites. तो इस तरीके की चीजें बेसिकली ऑपरेशन थिएटर के रूम्स में होना बहुत जरूरी है और जो इंपॉर्टेंट प्लानिंग का एक हिस्सा है। देन अदर फंक्शनल कंसिडरेशंस में मैक्सिमम 6 सूट्स आर देयर इन 1 OT कॉम्प्लेक्स, सो इट हैज, और ये प्रेफरेबली ग्राउंड फ्लोर पे हो।
CSSD डिपार्टमेंट से ये इम्पोर्टेंटली एक्सेस हो, बिकॉज स्टेराइल कंडीशंस का रहना बहुत ज़रूरी है. स्टेरिलाइजेशन यूनिट कितनी के प्रति इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. सिमिलरली इमरजेंसी एज वेल एज सर्जिकल वॉर्ड. सिमिलरली मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, साउंड्स. यू डोंट वांट टू क्रिएट नॉइस एंड सो दैट द पेशेंट बिकम्स डिस्टर्ब्ड. सिमिलरली हीट एंड विंड, सन, हर किसी से इसका प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए. एंड इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द जनरल ट्रैफिक फ्लो. वाई? बिकॉज देर इज नो क्योर्स, देर इज नो नॉइज एंड एवरीथिंग. यूजुअल साइज जो होता है वो 18x18 ओके, या फिर 40 मीटर स्क्वायर का होता है. और बेसिकली सुपर स्पेशलिस्ट ओटी यूनिट जितने भी होते हैं वो 60 मीटर स्क्वायर के होते हैं. इसके एडिशनल रूम आपको और इक्विपमेंट्स रखने के लिए, जैसे कि आपका हार्ट लंग मशीन हो गया, आपका सी आर्म हो गया, है ना, तो इसको रखने के लिए आपके पास में स्पेशल. एंड देयर हैज टू बी अ पेयर्ड ओटीज हेल्प इन दी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज द इक्विपमेंट. साथ में अगर पेयरिंग हो तो ज़्यादा आपके काम आता है. तो आप देखिए प्लानिंग एरिया में हमने बेसिकली 4 टाइप के फंक्शंस की बात की. फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग क्राइटेरिया में बेसिकली 4 टाइप के हमने एस्पेक्ट्स की बात की. वो फर्स्ट इज फंक्शंस, कि आपका बेसिकली किस तरीके की फंक्शनिंग आप करेंगे उस ओटीज के साथ में. सेकेंड, आर्गोमेट्रिक मतलब एनालिसिस या एफिशिएंसी या फिर वर्क फ्लो उसमें किस तरीके का है. आप ऑप्टिमली पेशेंट्स को, स्टाफ को, सप्लाईज को प्रॉपरली मूव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, और कितने इफेक्टिवली. और फिर आपका टेक्निकल एरियाज हो गया. और फोर्थ आपका एनवायरमेंटल एरियाज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ओके, देन इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए आपका जो ओटी है, सो OT1 ओटी फॉर द 50 सर्जिकल. तो आपने 50 सर्जिकल बेड के लिए सपोज एक ओटी आपने बैठाया है. अब वो ऑपरेशंस पर डे या आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं. तो इट इज डिराइव्ड बाय द फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ सर्जिकल बेड्स डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ ऑफ स्टे. ओके, एलॉस भी बोला जाता है इसको. तो नहीं ना, नॉर्मल ऑफ सर्जिकल बेड्स, तो आपके पास में टोटल बेड्स कितने हैं, फॉलोड बाय आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना है पेशेंट का. तो उससे क्या आपको आराम से नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर डे निकल जाएंगे. सिमिलरली नंबर ऑफ ऑपरेशंस इससे भी निकल सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्जिकल बेड्स जो होना चाहिए विच इज मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज ऑफ द बेड ऑक्यूपेंसी. ठीक है, तो ये भी है कि आपके जितने नंबर ऑफ बेड्स हैं उसको हम सर्जिकल ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि हमें पता चले कि पूरे साल में कितना है यूटिलाइजेशन है उसका. फॉलोड बाय एवरेज लेंथ ऑफ स्टे मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द वर्किंग ऑफ द ओटी डेज. तो इनटू की मतलब आपके एवरेज लेंथ ऑफ स्टे और 100 से आपने मल्टीप्लाई किया. और बेसिकली ये भी देखा जाता है कि कितने दिन आपका ओटी चल रहा है. कोई त्योहार वाले दिन या कुछ और प्रॉब्लम हो तो जिसकी वजह से आपका ओटी अगर नहीं चल रहा हो, तो उससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर डे आपके हॉस्पिटल में कितने हो रहे हैं. सिमिलरली आपका अलग तरीका है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सूट कैन नॉट बी एक्सीड 0.6 पर डे. तो दैट मीन्स कि 6 से ज्यादा हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रूम के अंदर या वो ओटी के अंदर. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नंबर ऑफ ओटीज पर बेड हॉस्पिटल्स, अगर ना पर हॉस्पिटल बेड्स के हिसाब से देखा है तो आप ये लगा लीजिए कि अगर हजार बेड का हॉस्पिटल है तो बेसिकली इंडोर में मेजर 10 ओटी होंगे, माइनर 2 ओटी होंगे, ओपीडी में 1 होगा मेजर और 1 माइनर होगा, और इमरजेंसी में 1 मेजर होगा 1 माइनर होगा. ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है. अब उसी तरीके से आपको 750 बेड का हॉस्पिटल है. अब वो भी बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां पे 8 और 2 का रेशियो है इंडोर ओटी में, है ना, और जिसमें बेसिकली आपका ओपीडी में 1-1 और इमरजेंसी. तो आप देखिए स्लाइड में सब 1-1 की मेजॉरिटी लिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर कि जहां पे मेजर इंडोर केसेस में या फिर जहां पे मेजर आपका नंबर ऑफ बेड्स हैं, जितने नंबर ऑफ बेड ज्यादा उस हिसाब से ओटी भी ज्यादा, बशर्ते उसका यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है. सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑपरेशन थिएटर को गाइड करते हैं. तो किस तरीके का, मैंने बताया आपको किस तरीके का हॉस्पिटल है. देन व्हाट अमाउंट ऑफ सर्जरी बेसिकली यू आर डूइंग इन द हॉस्पिटल. देन वी ऑल्सो spoke about the number about the hospital policy. Then what is the staff like, what is the strength, what are the average number of operations that take place, and what is the time which is used for the OT maintenance,
what is the usual turnover ratio for the OT, as well as average, what is the average length of stay, as well as the projected emergency surgical cases which is bound to come to the हॉस्पिटल. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो ओटी को गवर्न करते हैं, उसको बताते हैं. सिमिलरली जहां पे भी ग्रुपिंग ओटीज को हम ग्रुप कर देते हैं, जैसे एक साथ 4 ओटीज है, तो उसमें बेसिकली फायदा क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आपका एक्सपेंशन हो जाता है, आप बेटर ट्रेनिंग वहां पे कर सकते हैं, आपका स्टाफ यूटिलाइजेशन बेटर हो जाता है, आप इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स का ज्यादातर बेटर यूज कर सकते हैं, आपका बेटर मेंटेनेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ओटी एलोकेशन वेरी इजीली हो जाता है, इन्फेक्शन को भी मिनिमाइज करता है, एज वेल एज क्लीनिंग भी बेटर होती है, इट लीड्स टू एसेप्सिस कंडीशन. सो हमने जैसे बात की कि वेरियस जोन्स होते हैं, है ना. तो वेरियस जोन्स के अंदर हमने डिपेंड किया, हमने प्रोटेक्टिव जोन के बारे में बताया. वी आल्सो स्पोक रिगार्डिंग द क्लीन जोन फॉलोड बाय द एसेप्टिक जोन एंड द डिस्पोजल जोन. सो एंड देयर आर, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर सब एरियाज. तो आप देखिए स्लाइड में लिखा है प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन, एसेप्टिक जोन एंड द डिस्पोजल जोन. सो डिस्पोजल जोन जैसे होता है कि डिस्पोजल एरियाज फ्रॉम ईच, है ना, ऑपरेशन रूम एज वेल एज कॉरिडोर लीड टू द डिस्पोजल जोन. और इसके अलावा देयर आर सर्टेन, ओटी को छोड़ के देयर आर सर्टेन सब एरियाज एज वेल, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि वहां पे आपके प्री ऑपरेटिव चेक इन एरियाज होता है जिसको रिसेप्शन बोला जाता है, देयर सम होल्डिंग एरिया, इंडक्शन रूम होता है, देन पैकू होता है, दैट इज पोस्ट एस्थेटिक केयर यूनिट्स. ओके, पैकू. सिमिलरली स्टाफ रूम होता है, सैनिटरी फैसिलिटी फॉर द स्टाफ होता है, एनेस्थीसिया रूम होता है. उसके बाद में ऑफिस फॉर द स्टाफ नर्स एंड द एनेस्थीसिया स्टाफ, as well as the restrooms, laboratory, seminar rooms, as well as your store rooms. So all these are there. Apart from, last but not the least, theater sterile supply unit, TSSU बोलते हैं इसको, है ना. तो थिएटर स्टेराइल सप्लाई यूनिट क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर जो है अगेन 8 से 12 डिग्री का रखा जाता है. Then you have got an air conditioning, you have got a storage of the sterile drapes, sponges, gloves, etc. And basically here proper inventory has to be managed. As far as the various types of OT complexes is concerned, normally आप देखेंगे कि जितना भी OT होता है तो there is a single theater suite with the OT scrub होता है. उसके बाद में एनेस्थीसिया रूम, ट्रॉली प्रिपरेशन, है ना, जो ये सिंगल सूट में इस तरीके से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. सिमिलरली दूसरा तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम ट्विन थिएटर सूट. वहां पे सिमिलर टू द वन बट विद अगेन अ डुप्लीकेटेड एंसिलरी अकोमोडेशन होता है विच इज इमीडिएट टू ईच ओटी. एंड उसके अलावा ऐसे भी ओटी होते हैं जहां पे बेसिकली 3 या मोर ओटीज एक उसमें यूनिट में ही होते हैं, जैसा हमने बताया. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सब चीजों में जैसे हमने डिस्कस किया, तो मैं आपको प्रोटेक्टिव जोन के बारे में बता चुका हूं, क्लीन जोन, स्टेराइल जोन एज वेल एज डिस्पोजल जोन. अब इनके मेन प्रोटेक्टिव जोन का वी हैव ऑलरेडी सेड, इट लीड्स टू रिसेप्शन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल, प्री एनेस्थीसिया रूम, ऑटोक्लेव्स है, और बेसिकली ओटी इंचार्ज और सेमिनार एंड मीटिंग रूम, एंड ये सारे के सारे प्रोटेक्टिव जोन. सिमिलरली क्लीन जोन में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एसेप्टिक जोन और प्रोटेक्टिव जोन के बीच में जो बेसिकली कनेक्ट करता है तो हम उसको क्लीन जोन कहते हैं. सिमिलरली स्टेराइल जोन एंड सिमिलरली द डिस्पोजल जोन. सो दिस इज ऑल देयर. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें और एक चीज है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट हैज टू बी टेकन व्हाइल प्लानिंग एंड ओटी. सो मैंने आपको लोकेशन बोला कि लो राइज बिल्डिंग्स इज लिमिटेड टू ओनली 2 और 3 स्टोरीज, क्योंकि यहाँ पे हाई स्टोरेज प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ द नेचुरल, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नेचुरल सनलाइट मिलेगा, वेंटिलेशन मिलेगा. एंड ओटी शुड ऑल्सो बी सेपरेट फ्रॉम द जनरल ट्रैफिक एंड द एयर मूवमेंट्स, तो इससे भी आपको दूर रखना बहुत जरूरी है. सिमिलरली द लोकेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स इन मल्टी स्टोरेज इज प्लान ऑन द फर्स्ट फ्लोर, बिकॉज जो वहां पे क्या होता है कि वहां पे दे कैन बी इजिली कनेक्टेड टू द सर्जिकल एंड द अदर वार्ड्स ऑन द सेम फ्लोर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड एडिक्युलेटली सिमिलरली यू नो इलेक्ट्रिक लिफ्ट इज ऑल्सो प्लान फॉर द वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ द कैजुअलिटी, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट से वो लिफ्ट भी काम कर सके. और जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरियाज, ताकि हम यहाँ पे जहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ द मेन हो रहा है और जहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ द मशीन्स हो रही हैं, दैट आर नॉट हिंडर टू ईच अदर. Similarly, we have to plan adequate and appropriate spaces allocated per utility of the area. Emergency exist का provision होना चाहिए. And similarly, ventilation, temperature control
कीपिंग इन माइंड द नीड फॉर द लैमिनार फ्लो है ना, HEPA फिल्टर, एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा हैज टू बी प्रोवाइडेड। डोर्स का बड़ा ध्यान होना चाहिए कि नॉर्मल जो होता है ऑपरेटिंग रूम, हमें जो कताई रिकमेंडेड साइजेस क्या होता है 6.5 इंटू 6.5 इंटू 3.5 मीटर्स क्यूब। ओके, तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो ये बहुत एक जरूरी होता है कि इसको किस तरीके से हम वर्कआउट करें। सिमिलरली जो सरफेस होना चाहिए वो स्लिप रेजिस्टेंट होना चाहिए, ओटी का स्ट्रॉन्ग एंड इम्परवियस होना चाहिए। सिमिलरली रिकमेंडेड कंडक्टिविटी जो होना चाहिए उसके अंदर वो 1 मिलीओम का एज वेल एज मैक्सिमम जो है 10 मिलीओम का होना चाहिए। सिमिलरली वॉल्स जो होने चाहिए वो लैमिनेटेड पॉलिएस्टर और स्मूथ पेंट के होने चाहिए जो सीमलेस वॉल्स हो सकें। और सिमिलरली टाइल्स कैन ब्रेक एंड इपॉक्सी पेंटिंग कैन बी चिप्ड आउट। तो इस तरीके से नॉर्मल फैसिलिटी होना चाहिए। पर ऑपरेशन टेबल पे एक ही ओटी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, तो उसके अलावा आपका स्क्रब एरिया होना चाहिए। ठीक है, सो ऑल दिस हैज टू बी मेंटेन। सो बस उसके अलावा आपका और क्या चीजें हैं, प्लम्बिंग का मैंने बताया, वाटर सप्लाई बिकॉज आई टोल्ड यू इट हैज टू बी इन इंजीनियरिंग, और वो सारे एस्पेक्ट से वो होना चाहिए। हाँ, और उसके अलावा आपका ऑटोक्लेव रूम, आपका ओटी एडमिशन रूम। अब जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताया कि सर्जिकल जो रूम होना चाहिए उसमें 4 से 7 ओटी स्टाफ होना चाहिए। तो उसमें बेसिकली आपका चीफ असिस्टेंट, स्क्रब नर्स, आपका एनेस्थेटिक नर्स, ओके, सिमिलरली अटेंडेंट्स, ये सारे के सारे लोगों के लिए प्रोविजन होना चाहिए। वाटर सप्लाई बहुत होना चाहिए, ऑटोक्लेव रूम हैज टू बी देयर। सो ऑल दीज थिंग्स इज देयर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में इट इज इंपॉर्टेंट दैट हैज टू बी प्रिपरेशन के कितने ऑपरेशन शेड्यूल है आज की डेट में, प्रिपरेशन ऑफ ओटी लिस्ट है कि नहीं, रिक्विजिशन ऑफ द पेशेंट है, आपने वो सारी चीजें अलॉट की हुई है कि नहीं, shifting of patients to the OT and then the preparation of the doctors and the assisting staff. So you can see in the picture, reception of the patient, supportive services, administrative, housekeeping, storekeeping, all has to be in. Similarly supportive services में OT, dressing, scrubbing, gowning, so this is all there as you all know. Similarly, housekeeping activities, storekeeping activities, and these things are designed properly. आपके walls कैसे हैं, roofs कैसे हैं, that we have already discussed just now. And then similarly हमारे लिए ये भी important है यहाँ पे देखना कि यूजली लेंथ ऑफ स्टे, जैसा मैंने आपको कहा कि 300 बेडेड हॉस्पिटल में यूजली अगर मैं देखूं, अगर 150 सर्जिकल बेड्स हैं तो उसमें 1 ओटी कॉम्प्लेक्स विद 3 ओटीज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 ओटीज फॉर जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स, ENT, और 1 फॉर एंडोस्कोपी एज फॉर सेप्टिक सर्जरी। सो ओटी विल बी रिक्वायर्ड विद इन बेसिकली 8 आवर्स अ डे वर्किंग ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए होता है। एयर कंडीशनिंग, जब तक हम वेंटिलेशन की बात करते हैं सपोज, सो वेंटिलेशन में, वेंटिलेशन अगेन इज अ पार्ट, वी विल सी वेयर वेंटिलेशन इज देयर, जस्ट अ मिनट। ओके, आप प्लम्बिंग की जैसे हमने बात की, सिमिलरली एयर कंडीशनिंग, यस, हेयर वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन को अगर हम देखा जाए ना तो एयर कंडीशनिंग यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एयर व्हाट यू रिक्वायर एयर कंडीशनिंग में आपके 2 टाइप के सिस्टम्स, रीसर्कुलेटिंग एंड नॉन रीसर्कुलेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। यहाँ पे नॉन रीसर्कुलेटिंग सिस्टम्स में आपका हीट कूल एयर को जो है एज पर डिजायर्ड एंड कन्वे टू द ऑपरेटिंग रूम विद एन आइडियली 20 एयर एक्सचेंज पर आवर के हिसाब से ये होना चाहिए। तो ब्रॉड रिकमेंडेशन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे जो हीट और कूलिंग सिस्टम का वो होता है, आदान प्रदान, एक्सचेंज जो होता है, वो पर आर 20 to 30 एयर एक्सचेंजेस का होना चाहिए। एयर एक्सचेंजेस इज बेसिकली द यूनिट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द एयर। तो उसके अलावा अल्ट्रा क्लीन लैमिनर एयर फ्लो होना चाहिए जिसकी ह्यूमिडिटी 40 to 60% होना चाहिए एंड टेम्परेचर बिटवीन 20 to 24 डिग्री। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर पाइप्ड गैसेस इन दी ओटी जो कि ऑटोमेटिक होना चाहिए, 2 आउटलेट्स होना चाहिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए पाइपलाइन होना चाहिए। सो दिस हैज टू बी देयर एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिकल स्कैवेंजिंग एंड ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी देयर। ओके, एंड लास्ट में फिजिकल एक्टिविटीज जो हमने आपको बता दिया है, इट हैज टू बी देयर, है ना।
lighting is very important, anesthesia, communication, catering, cleaning, data management, all is very very important. थैंक यू सो मच। तो ये है इस तरीके से, तो आप इसको जरूर देखिएगा एंड डू कम टू अस विद योर मोर क्वेश्चंस।